بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ حماس نے مزید 2 لاشیں حوالے کی، کہاں پہچاننے میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں، جدید آلوں کی ضرورت ہے۔ سیز فائر پر عمل نہیں ہوا تو لڑائی پھر شروع ہو جائے گی، ڈونلڈ ٹرمپ نے دی دھمکی، امریکی عہدیداروں کو سمجھوتہ قائم رہنے کی امید۔ یحییٰ سنوار کی پہلی برسی، حماس نے کہا طوفان اقصی کا شعلہ کبھی نہیں بجھے گا، شہیدوں کا خون مزاحمت کو مضبوط کرے گا۔ افغانستان کے طالبان انڈیا کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، پاکستان نے لگایا الزام، کہا شاید جنگ بندی قائم نہ رہے۔ ناکامیوں کے لیے پڑوسیوں کو ذمہ دار ٹھہرانا پاکستان کی عادت ہے، انڈیا کا جواب، کہا افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کے پابند ہیں۔ مودی نے رشین آئل کی خریدی بند کرنے کا یقین دلایا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا دعویٰ، کہا ماسکو پر دباؤ ڈالنے کی طرف بڑا قدم ہوگا۔ انڈیا اور رشیا نے ٹرمپ کا دعویٰ رد کر دیا، وزارت خارجہ نے کہا آئل ایکسپورٹس کا تعلق ملک کے مفادات سے ہے۔ حیدرآبادی نوجوان یوکرین جنگ میں پھنس گیا، ملازمت کے لیے گیا تھا، رشین فوج کے ہتھے چڑھ گیا، مجھے بچایا جائے، جذباتی ویڈیو وائرل۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس نے مزید 2 اسرائیلی ہوسٹیجز کی لاشیں حوالے کی ہیں، جن کی پہچان بھی کر دی گئی۔ حماس نے ریڈ کراس کو یہ لاشیں حوالے کی۔ لاشوں کی حوالگی کے مسئلے پر ایک تنازعہ پیدا ہو گیا ہے۔ حماس کو جنگ بندی سمجھوتے کے تحت 28 لاشیں اور 20 زندہ ہوسٹیجز کو چھوڑنا تھا۔ اب تک تمام زندہ ہوسٹیجز واپس آ چکے ہیں اور 9 لاشیں حوالے کی گئی ہیں، لیکن حماس کا کہنا ہے کہ اسے دوسرے ہوسٹیجز کی لاشوں کی پہچان کے لیے خصوصی آلوں کی ضرورت ہے۔ اس طرح ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، جس سے جنگ بندی سمجھوتہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ دوسری طرف امریکی عہدیداروں نے اس خطرے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ حماس سمجھوتے پر عمل کرے گی۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر حماس سیز فائر ڈیل پر عمل نہیں کرتی ہے تو لڑائی پھر سے شروع ہو جائے گی اور اسرائیل پھر سے غازہ میں چلا جائے گا، لیکن امریکی عہدیداروں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ حماس جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی نہیں کر رہی ہے۔ اب تک 19 فلسطینیوں کی لاشیں غازہ پہنچ چکی ہیں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ 19 ہوسٹیجز کی لاشیں ابھی واپس آنا باقی ہے۔ حماس نے کہا کہ وہ ہوسٹیجز کی لاشوں کو تلاش یا ان کی پہچان نہیں کر پا رہی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی عہدیداروں نے شکایت کی تھی کہ حماس کی طرف سے پہنچائی گئی ایک لاش اسرائیلی ہوسٹیجز کی نہیں ہے بلکہ غازہ کے ایک شہری کی ہے۔ اس دوران دونوں طرف سے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں 3 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ہیومینیٹیرین چیف ٹام فلیچر نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ غازہ پٹی میں اتنی مدد نہیں پہنچائی جا رہی ہے جتنی ضرورت ہے۔ اسرائیل مدد پہنچانے کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام کر رہا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے ڈرون سے خان یونس کے قریب حملہ کیا۔ اسرائیلی
टैंक्स ने शुजाइया इलाके में भी गोलाबारी की। गाजा पट्टी में जंगबंदी समझौते पर इक्का दुक्का वाक़यात को छोड़कर अमल हो रहा है, लेकिन मगरबी किनारे में तनाव बढ़ता जा रहा है। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की सरगर्मियां काफ़ी बढ़ गई हैं। हमास लीडर याह्या सिनवार की फ़लस्तीनी इलाके में बरसी मनाई गई। इस मौके पर हमास ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ऑपरेशन तूफ़ान अक्सा का शोला कभी नहीं बुझेगा। बयान में कहा गया कि शहीद लीडर्स के खून से कई नस्लों तक मुज़ाहमत का रास्ता मजबूत होगा। बयान में कहा गया कि याह्या सिनवार ने अपना फ़र्ज़ अदा किया और बहादुरी से लड़े। उन्होंने शहादत हासिल की और इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका जज्बा हमेशा कायम रहेगा। बयान में कहा गया कि दुश्मन गाज़ा की ज़मीन पर अपने जारहाना मकसद हासिल करने में नाकाम रहा और उसे ज़िल्लत उठानी पड़ी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाव के बीच पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान इंडिया के इशारों पर काम कर रहे हैं और जंगबंदी शायद कायम ना रहे। एक दिन पहले झड़पों के बाद दोनों मुल्कों ने 48 घंटों के सीज़ फायर से इत्तेफाक किया था। ये लंबे अरसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सबसे शदीद झड़पें हैं, जिसके दौरान पाकिस्तानी फ़ौज ने कंधार और काबुल पर भी हमला किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान हमलों का जवाब देने की सलाहियत रखता है, लेकिन मुमकिन हो तो बातचीत की तायीद करेगा। इन झड़पों में कई सिविलियंस और सिपाही मारे गए, लेकिन उनकी तादाद के ताल्लुक से अलग अलग दावे किए गए। ताज़ा झड़पों का ताल्लुक पाकिस्तान के इस दावे से है कि अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के दहशतगर्द छुपे हुए हैं। काबुल इन इल्ज़ामात को गलत बताता है। ये तनाव एक ऐसे वक्त पैदा हुआ जब अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने इंडिया का दौरा किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर सरहद की सूरत हाल और दूसरे मामलात पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करेगा। कैबिनेट ने इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान पाकिस्तान तनाव और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के बारे में गौर किया। कैबिनेट ने कहा कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी है। इंडिया ने कहा है कि अपनी नाकामियों के लिए पड़ोसी मुल्कों को जिम्मेदार ठहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अफगानिस्तान के साथ झड़पों के लिए पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को जिम्मेदार ठहराए जाने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इंडिया अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की बरकरारी का पाबंद है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को इंडिया ने रशियन ऑयल की खरीदी के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान को रद्द कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने ट्रंप के बयान को गलत बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल उनसे वादा किया कि वो रशिया को तेल का इम्पोर्ट रोक देंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वो मोदी और ट्रंप के दरमियान कल ऐसी किसी बातचीत से वाकिफ़ नहीं हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि रशिया से तेल और गैस की खरीदी का ताल्लुक़ एक हसास मार्केट में मुल्क के मफादात से है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि कल मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि मोदी ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो रशिया से तेल की खरीदी बंद कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये फौरी नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जल्द ही रशिया से तेल की खरीदी बंद कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले दावा किया कि उनके दोस्त नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया कि इंडिया रशिया से तेल का इम्पोर्ट बंद कर देगा और ये यूक्रेन जंग बंद करने के लिए रशिया पर दबाव डालने की तरफ एक बड़ा कदम होगा। ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा था कि अमरीका इस बात से खुश नहीं है कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है। ऐसी खरीदी की वजह से सदर व्लादिमीर पुतिन की जंग की फाइनेंसिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदी मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, हमारे दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। हम रशिया से तेल खरीदने पर उनसे खुश नहीं थे, लेकिन आज मोदी ने मुझे यकीन दिलाया कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ये बड़ा कदम है। हम चाइना से भी ऐसा ही मुतालबा करेंगे। इंडिया चाइना के बाद रशियन तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया यूक्रेन जंग ख़त्म करने के बाद रशिया से तेल और गैस खरीद सकता है। वज़ीर आज़म मोदी को एक बेहतरीन आदमी करार देते हुए ट्रंप ने कहा कि वो ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लफ्ज़ मोहब्बत को कुछ और मानों में इस्तेमाल करें। मैं उनका सियासी करियर तबाह करना नहीं चाहता। मोदी की तारीफ़ करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं कई बरसों से इंडिया को देख रहा हूँ। ये एक शानदार मुल्क है, लेकिन वहाँ हर साल एक नया लीडर आता था। कुछ लीडर्स कुछ महीने के लिए आते थे, लेकिन कई साल ऐसी ही सूरत हाल रही। लेकिन मेरे दोस्त लंबे अरसे से वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि रशिया से तेल नहीं ख़रीदा जाएगा। रवायती तौर पर इंडिया मिडल ईस्ट के तेल पर डिपेंड करता था, लेकिन 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से वो रशिया से तेल ख़रीद रहा है।
यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से मगरबी मुल्कों खासतौर पर अमेरिका ने कई बार रशिया से तेल की खरीदी पर इंडिया पर तनकीद की है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इस मसले पर इंडिया का नुक्ता नज़र रखा है और कहा है कि वो सिर्फ अपने शहरियों के लिए बेहतर डील हासिल करना चाहता है। ट्रंप ने कई बार इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया रशिया की वार मशीन को फ्यूल कर रहा है। इसी मसले पर ट्रंप ने इंडिया पर 25% इजाफी टैरिफ लगाया था। दिल्ली में रशिया के सफ़ीर डेनिस एलिपोव ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को रद्द कर दिया और कहा कि इंडिया के तेल इंपोर्ट का ताल्लुक इंडिया के कौमी मफादात से है। ये पूछे जाने पर कि क्या इंडिया रशिया से तेल खरीदता रहेगा, रशियन सफ़ीर ने कहा कि ये सवाल इंडियन गवर्नमेंट से करना चाहिए। इंडियन हुकूमत सबसे पहले अपने मुल्क के मफादात को अहमियत देती है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक 37 साला शख्स मोहम्मद अहमद रशिया की और यूक्रेन की जंग में फंस गया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें अहमद ने कहा है कि मुंबई के एक एजेंट ने उसे धोखा देकर रशिया भेज दिया, जहां उसे यूक्रेन जंग में झोंक दिया गया। खैरताबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान का ये वीडियो सामने आया है। अहमद के एक रिश्तेदार ने बताया कि हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि उनकी मदद की जाए और उसे वापस लाया जाए। अहमद हैदराबाद में बाउंसर की हैसियत से काम करता था। मुंबई के एक एजेंट ने उसे रशिया में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम दिलाने का वादा किया। वो 25 अप्रैल को रशिया गया और वहां पर फंस गया, लेकिन महाज जंग पर जाते हुए अहमद ने फौजी गाड़ी से छलांग लगा दी और लड़ने से इनकार कर दिया। अहमद की बीवी फिरदौस बेगम ने बताया कि अहमद का पैर ज़ख्मी हो गया, लेकिन फ़ौजी अहदेदारों ने उसे बताया कि उसे जाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। अहमद ने अपने घर वालों से बातचीत करते हुए अपनी दास्तान सुनाई। कई महीनों से वो अपने घर वालों को अपनी मुश्किलों के बारे में नहीं बता रहा था। बताया गया कि अहमद को हथियार इस्तेमाल करने की 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान फिरदौस बेगम ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से नुमाइंदगी करते हुए मदद की अपील की। पिछले साल भी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान यूक्रेन में लड़ाई के दौरान मारा गया था। वो भी इसी तरह किसी एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार हुआ था। कुछ दिन पहले ही गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने यूक्रेन की फ़ौज के सामने हथियार डाल दिए थे और कहा था कि उसे ज़बरदस्ती लड़ने के लिए मजबूर किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार ऐसे मामलों पर रशिया की हुकूमत से नुमाइंदगी की है, लेकिन अब भी ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिनमें इंडिया के नौजवानों को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जंग में झोंका जा रहा है। वीडियो में अहमद को ये कहते हुए सुनाया गया कि उसे बचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तो मैं जहाँ हूँ वहाँ बॉर्डर है, पूरा जंग चल रही। ये लोगों के जितने लोग गए पूरों के स्लीपिंग बैगा हैं, कोई भी नहीं आया वापस अभी तक। हम लोग 25 जने थे, 25 में 17 जने मर गए। एक इंडियन भी था हमारे साथ में, उन भी मर गया बेचारा आज सुबह में 6 बजे पे। आज खबर आई हमारे को कि उन मर गया बोल के। तो हम लोग 4 जने इंडियन बैठ गए थे, हम लोग नहीं जाते बोल के। वो गोली मार देते, वो करते ये करते बोल के। गन निकाल के हमारे गर्दन पे, मेरी कनपट्टी पे रखे और एक दोस्त की गर्दन पे रखे। तू नहीं गया तो तेरे को यहाँ मार देते, बोल देते कि तेरे को ड्रोन लग गया, बम गिर गया तेरे ऊपर बोल के, तेरी बॉडी कहीं भी दफनाए थे बोल के ऐसा कर रहे। तो फिर 2 दोस्त रेडी हुए जाने के वास्ते। अब मेरे पैर में प्लास्टर बने हुआ है, कुछ चलने नहीं आ रहा समझो। तो मैं अब 1 दिन की टाइम ले रहा हूँ। मेरा नंबर कल है सुबह में, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्या करते मेरी गलती हो गई, मगर एजेंट को नहीं छोड़ना। कई को बोलते वो एजेंट मेरे को लाके फंसाया यहाँ पे। अगर मेरे को एजेंट मेरे को काम अच्छा दे देता तो मैं ये कदम ही नहीं उठाता था। एजेंट आया, 25 दिन मेरे को बिठाया, मेरे को एजेंट से बात करा, क्या भाई वीकेंड रिकॉर्डिंग अभी है मगर अब कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। 25 दिन मेरे को एजेंट बिठाया, काम नहीं दिलाया। मैं बोला उसको काम दिलाओ, हाउ दिलाता हूँ। मैं जो काम बोला वो काम नहीं कर रहे तुम। उन जो मेरे को काम दिलाया उन लोग मेरे को काम पे नहीं लेके जा रहे थे। 25 दिन बैठा मैं, खाली बेकार के झूठे बातें कर रहा था, वो कर रहा था। अगर दूसरी जगह पे काम पे गया तो उन लोग पैसे डुबा दिए, फिर तीसरी जगह पे गया उन लोग भी डुबा दिए, यहाँ तक कि मेरे पैसे ट्रांसफ़र करने के भी खा गए। अब मैं आखिरी में ये ऑप्शन उठाया, मगर मैं ये पूरे मेरे ये दोस्त जो एजेंट है आदिल
ट्रस्टेड कंसल्टेंसी, मैं इसके ऊपर पूरा दोष है। उन मेरे को काम दिलाता करता तो मैं ये क़दम ही नहीं उठाता था, और मैं नहीं उठाने क़दम उठाया नहीं, मेरे को ज़बरदस्ती लाए यहाँ पे, ऐसा ऐसा बोल के ते कोई ये काम कराते बोल के, तो चलो काम ही छे बोल के मैं भी आ गया। ऐसा नहीं कि यहाँ जंग में आना मेरा शौक़ था बोल के, नहीं, ठीक है ना। अब शाह ख्याल रखो अपना, इंशाल्लाह कल एक दिन का टाइम मांग रहा, दिया अच्छा, नहीं दिया तो मेरे को भी जाना पड़ता। बाकी सब अल्लाह मालिक, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी गलती हुई क्या भी हुई तो मेरे को माफ़ कर देना। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि यमन में इंडिया की एक नर्स की सजाए मौत पर अमल को मुलतवी कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब नए मुसालहतकार के जरिए बातचीत हो रही है और इस केस को जनवरी 2026 तक मुलतवी कर दिया गया है। केरला से ताल्लुक़ रखने वाली एक नर्स निमिषा प्रिया को एक केस में, जो कत्ल का केस था, सजाए मौत सुनाई गई थी। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को बताया कि एक नए मीडिएटर के जरिए काम हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हमास ने मजीद 2 लाशें हवाले की, कहां पहचानने में मुश्किलें पेश आ रही हैं, जदीद आलों की जरूरत है। सीज फायर पर अमल नहीं हुआ तो लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, अमरीकी ओहदेदारों को समझौता कायम रहने की उम्मीद। याहिया सिनवार की पहली बरसी, हमास ने कहा तूफान अक्सा का शोला कभी नहीं बुझेगा, शहीदों का खून मुजाहिमत को मजबूत करेगा। अफगानिस्तान के तालिबान इंडिया के इशारों पर नाच रहे हैं, पाकिस्तान ने लगाया इल्जाम, कहा शायद जंगबंदी कायम ना रहे। नाकामियों के लिए पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराना पाकिस्तान की आदत है, इंडिया का जवाब, कहा अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के पाबंद हैं। मोदी ने रशियन ऑयल की खरीदी बंद करने का यकीन दिलाया, डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा, कहा मॉस्को पर दबाव डालने की तरफ बड़ा कदम होगा। इंडिया और रशिया ने ट्रंप का दावा रद्द कर दिया, वजारत खारजा ने कहा ऑयल एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक मुल्क के मफादात से है। हैदराबादी नौजवान यूक्रेन जंग में फंस गया, मुलाजिमत के लिए गया था, रशियन फौज के हत्थे चढ़ गया, मुझे बचाया जाए, जज्बाती वीडियो वायरल। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।